watch this topic in Hindi, skip the video to 3 minutes and 23 seconds. Hello everyone. Welcome to another episode of Legal Update. Today's topic of discussion is Stridhan property. First, let us see why is it in the news. The recent Supreme Court ruling in the case of Maya Gopinathan versus Anup SB reaffirmed that Stridhan is the exclusive property of a woman. Although the husband cannot exert any control over it, he can utilize it in times of necessity. Let's look at the background of the case. The appellant and first respondent got married on May 4, 2003, following Hindu customs. The appellant claimed that her family gifted her 89 sovereigns of gold during the wedding. Additionally, her father gave Rs 2 lakhs to the first respondent after the marriage. The first respondent allegedly took custody of all her jewelry and gave it to the second respondent for safekeeping. The appellant accused the respondents of misappropriating her jewelry to settle their own debts. In 2009, the appellant filed a petition in the family court to recover the value of jewelry and the Rs 2 lakhs. She also filed for divorce. The family court ruled in favor of the appellant, stating that the respondents misappropriated her jewelry. The respondents appealed to the High Court of Kerala, which partially sided with them, overturning the family court's decision. The appellant then appealed to the Supreme Court, which ultimately allowed her appeal. The court's observations were as follows. A bench of Justices Sanjeev Khanna and Deepankar Datta observed that Stridhan is an absolute property of a woman and the husband has no control over it. However, he can use it in times of distress but has a moral obligation to restore it or its value to his wife. The court cited the judgment in Rashmi Kumar versus Mahesh Kumar Bhada. Let's know more about Stridhan. The term Stridhan originates from the words Stri, meaning a woman, and Dhana, meaning property. Stridhan encompasses all assets a woman receives during her lifetime. It includes movable and immovable property, gifts, etc. received by a woman before marriage, during marriage, childbirth, and widowhood. Unlike dowry, Stridhan is a voluntary gift given to a woman before or after marriage and is not coerced. Women have absolute right over their Stridhan. Let's now discuss laws relating to Stridhan. Section 14 of the Hindu Succession Act 1956 read with Section 27 of the Hindu Marriage Act 1955 stating, even if placed in the custody of her husband or in-laws, they are deemed trustees and must return it upon her demand. Section 12 of the Domestic Violence Act 2005 provides for a woman's right to her Stridhan in cases of domestic violence. The provisions of this law can be easily invoked for Stridhan recovery. The magistrate may direct the respondent to return the woman's Stridhan or any other property she is entitled to. Let's discuss a case law related to it. Rashmi Kumar versus Mahesh Kumar Bhada. In this case, the Supreme Court held that Stridhan property does not become a joint property of the wife and the husband. The latter has no title or independent dominion over the property. Before we wrap up, here's a question for you. Which law protects a woman's right to her Stridhan? Indian Penal Code, Hindu Adoption and Maintenance Act, Hindu Succession Act 1956, or Indian Contract Act? Send the answer to this question in the comment section. Like, share and subscribe for more such content. नमस्कार, लीगल अपडेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है स्त्रीधन संपत्ति। सबसे पहले जान लेते हैं यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने माया गोपीनाथन बनाम अनूप एसपी मामले में दोहराया कि स्त्रीधन किसी महिला की निर्बाध या संपूर्ण संपत्ति है। हालांकि पति का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन वह संकट के समय में इसका उपयोग कर सकता है। आइए जान लेते हैं मामले की पृष्ठभूमि। इस मामले में अपीलार्थी और प्रथम प्रतिवादी का विवाह 4 मई 2003 को हिंदू संस्कार और रीति रिवाजों के अनुसार हुआ था। अपीलार्थी के अनुसार विवाह के समय उसके परिवार ने उसे 79 सोवरेन सोना उपहार में दिया था। इसके अतिरिक्त विवाह के पश्चात अपीलार्थी के पिता ने पहले प्रतिवादी को 2 लाख रुपए भी दिए। अपीलार्थी के अनुसार पहले प्रतिवादी ने उसके सभी गहनों को अपने कब्जे में ले लिया, जिसे बाद में दूसरे प्रतिवादी को सुरक्षित रखने के लिए सौंप दिया गया। अपीलार्थी के अनुसार उसके सभी गहनों का प्रतिवादियों ने अपनी पूर्व की वित्तीय देनदारियों का निपटान करने के लिए गबन कर लिया। वर्ष 2009 में अपीलार्थी ने गहनों के मूल्य और पूर्व में प्रदत्त 2 लाख रुपए की वसूली के लिए फैमिली कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की। साथ ही विवाह विच्छेद के लिए भी याचिका दायर की। फैमिली कोर्ट ने अपीलार्थी के पक्ष में निर्णय करते हुए कहा कि उत्तरदाताओं ने वास्तव में अपीलार्थी के सोने के आभूषणों का दुरुपयोग किया और उत्तरदाताओं को दुरुपयोग से हुए नुकसान की भरपाई करने का आदेश दिया। फैमिली कोर्ट के आदेश से व्यथित होकर उत्तरदाताओं ने केरल उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। इसके पश्चात अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। न्यायालय की टिप्पणियों की बात करें तो
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने कहा कि स्त्रीधन महिला की निर्बाध संपत्ति है और हालांकि पति का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, किंतु वह संकट के समय इसका उपयोग कर सकता है। फिर भी उसका अपनी पत्नी को वही या उसका मूल्य लौटाने का नैतिक दायित्व है। न्यायालय ने रश्मि कुमार बनाम महेश कुमार भादा मामले में किए गए निर्णय का हवाला दिया। चलिए जान लेते हैं क्या है स्त्रीधन। स्त्रीधन शब्द की उत्पत्ति स्त्री एक महिला और धन शाब्दिक अर्थ संपत्ति से हुई है। किसी महिला को उसके जीवन काल में प्राप्त वस्तुओं को स्त्रीधन कहा जाता है। इसमें विवाह से पूर्व, विवाह के समय, प्रसव के दौरान और विधुर अवस्था में महिलाओं को प्राप्त सभी संपत्ति, उपहार इत्यादि शामिल हैं। स्त्रीधन दहेज से इस मायने में अलग है कि यह एक महिला को उसकी शादी से पूर्व अथवा पश्चात में स्वेच्छा से दिए जाने वाला उपहार है और इसमें जबरन जैसा कोई तत्व शामिल नहीं है। स्त्रीधन पर महिलाओं का संपूर्ण अधिकार होता है। चलिए जान लेते हैं स्त्रीधन से संबंधित कानूनों के बारे में। एक महिला का अपने स्त्रीधन पर अधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 के साथ हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 27 के तहत संरक्षित है, जिसके अनुसार किसी नारी का स्त्रीधन उसके पति अथवा उसके ससुराल के नातेदारों के कब्जे में हो सकता है। वे उस संपत्ति के न्यासी माने जाएंगे, किंतु अगर नारी अपने स्त्रीधन की मांग करती है तो उसे लौटाने वे आबद्ध होंगे। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 उन मामलों में महिलाओं को उनके स्त्रीधन का अधिकार प्रदान करती है जहां वे घरेलू हिंसा की शिकार हैं। स्त्रीधन की वसूली के लिए इस कानून के उपबंधों को सरलता से कार्यान्वित किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट प्रतिवादी को पीड़ित व्यक्ति को उसका स्त्रीधन अथवा कोई अन्य संपत्ति अथवा मूल्यवान सुरक्षा जिसकी वह हकदार है पुनः लौटाने का निर्देश दे सकता है। चलिए जान लेते हैं इससे संबंधित केस कानूनों के बारे में। रश्मि कुमार बनाम महेश कुमार भादा। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि स्त्रीधन पत्नी और पति की संयुक्त संपत्ति नहीं बनती है। उत्तरार्ध का संपत्ति पर कोई स्वतंत्र प्रभुत्व नहीं है। आइए अब नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। कौन सा कानून एक महिला के स्त्रीधन के अधिकार की रक्षा करता है? भारतीय दंड संहिता, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 या भारतीय अनुबंध अधिनियम? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।